आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में जो भी कंटेंट मेरे चैनल से जुड़े वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। तो आज के मैप के बारे में बात करें। के मैप क्या है? ठीक है, के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन जैब्रा है which consists two cells for n variable. The adjusting cells are different only single bits. This line is very important कि जो भी चेंजेस होता है इसके अंदर केवल सिंगल बिट्स में ही होता है, डबल बिट्स में ये इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकता। ये इसका रूल है और इसी रूल के अकॉर्डिंग के मैप क्रिएट किया जाता है। Okay, just see how to frame the group. Pair. What is a pair? A set of two 1 or two 0 in consecutive horizontal or vertical cell can be made under the group treated as a pair. For example, you just observe in diagram. One pair, there is a 1 in 0 and 1 is 4. So 1 0 and 4 become a pair. Same fashion you can see that 1 is in 2 and 1 is in 6. So 2 and 6 become a pair. Now 15 place there is a 1 and 14 place there is a 1. So it become a pair. By map rolling, one pair is also builded. Just see, one is in 9 position and one is 0 position. So by the throw of map rolling, it become pair. Now, a one pair in the second diagram, just observe there is a one pair become overlapping because one was a left. So by the help of overlapping, we can also create pair, but too much overlapping is not allowed. If any variable is left, okay, at the position, we can create the pair, octal and quad by overlapping. Otherwise, it is not allowed. Okay. We are talking about quad. Quad, a set of 4 1 together can frame a group treated as a quad in the case of SOP. Same fashion in the case of POS. If 4 1, 4 0 are together, can be group treated as a quad. So just see in one place 5 7 13 14 there is a 4 1. So we will create a quad. Okay, we will not create a pair of 5 13 7 15. No, we can create quad. Same fashion in the diagram of second, you just see there is a 4 1. One is 1 in the 1 place, 1 in 5 place, 1 is 13 place and 1 is 9 place. So at the time it become a quad. Okay, and just see either it can be horizontal 4 1 or vertical 4 1 together, it will be framed as a quad. In the third diagram, just see there is a quad is built by map rolling. Position just see 4 15 and 6 14. It become a quad. Same fashion, next one just see 1 and 3 and 9 and 11 become a quad by the help of map rolling. Again you can see that one more map rolling is there. Just see 0 position, 2 positions, 8 position, 9 position. According to that, you should just see there is a 4 1
and then we will create a quad, we will not create pair. Okay. Octa. A set of 8 ones together can be a group treated as a octa. Just see in example 1, there is a 8 1 together. In example 2 also 8 1 is together, and example 3rd, with the help of map rolling 8 1 are there, so we will create octa. Always remember, whenever we are creating a K-map, first we see octa is going to be created, then second we are going to see quad, and the last one we will see the pair. Okay. Method is a most suitable for minimize Boolean functions of 2 variable to 5 variable. मीन्स 2 से 5 वेरिएबल तक की के मैप फंक्शंस मिनिमाइज हो सकता है. ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम सारे वेरिएबल मेथड को समझते हैं. सबसे पहली बात आती है, अगर वेरिएबल 2 है, जब 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो क्या करेंगे. द नंबर ऑफ सेल इज 2 वेरिएबल के मैप इज 4. आपको पता है जब टेबल बनाते हैं 2 वेरिएबल्स होते हैं तो कॉम्बिनेशन 4 का बनता है. ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ सेल जो क्रिएट होते हैं वो आपके 4 होते हैं. ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर एक ग्राफिक बना हुआ है y और z. जब y z की बात करते हैं तो आपको भी पता है वन वेरिएबल हैज अ 2 वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स, मींस हाई लेवल और लो लेवल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 and 1. z में भी z एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 and 1. गॉट इट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है m0 m1 m2 m3. इसमें एक ही बिट का चेंजेस हो रहा है, आपको देख लीजिए 0 0 टेबल बन रही है, सेल का लोकेशन है 0 and 1, 0 and 1 दोनों तरफ से क्या हो रहा है एक ही बिट्स का चेंजेस हो रहा है. इसीलिए क्या हो रहा है, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्रुपिंग फॉर एडजस्टिंग. ओके, तो फॉर एडजस्टिंग की जो इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है वो इस तरह से. तो इसका लोकेशन क्या हो रहा है 0 and 0 m0 m1 m2 m3. ओके, इस तरह से सेल क्रिएट हो रहा है. आप उसको एक 4 सेल्स टेबल पे बना सकते हैं, मतलब 2 कॉलम 2 रो, नहीं तो आप 1 रो एंड 4 कॉलम में भी क्रिएट कर सकते हैं. 3 variables K map. In the 3 variable K map, there will be 1 value in row and 2 value in column. Okay, so just see 0 and 1. X value is only 0 and 1. तो y value is of course raised to the power, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 and 1 0 and 1 1. But you can see that in last combination value become a 3rd position and 3rd position value become 4th position. ऐसे ही सेल में डेटा will be transferred m0 m1 m3 m2 m4 m5 m7 m6. According to that we will make a K map. Create a K map whenever we have to SOP expressions of 3 variables. You have seen that A, B, C 3 variables are there and the position cell has given 1 3 6 7. So we will create the K map according to that 0 1 3 2 4 5 7 6. Okay, so whatever value it has given in that cell only we put the value. You are seeing that the value has given 1, so we will put the 1 in one column. Where 3 we will put 1 in 3rd position. We will put next one is 6, we will put 6 in that position, and 7th position. Means whenever we are
You just see the sigma. Sigma is there. Sigma A, B, C. Sigma is represent for the sum of product. Whenever we are dealing with the sum of product, at the time we put one value for sigma and 0 for product of sum यानी POS. तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 1 जिस सेल पे रेफरेंस दिया है उस सेल रेफरेंस पे 1 पुट कर दिया गया. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर एंड क्वाड बनाएंगे. तो पेयर देखिए कैसे हो रहा है, आप खुद देखिए. 1 एंड थर्ड सेल को मिलाकर एक पेयर बन रहा है और दूसरा पेयर 7 एंड 6 को मिलाकर बन रहा है. तो दो पेयर बिल्कुल क्लीन बन रहे हैं, तो यहाँ से पेयर बना लिए जाएंगे. अब एक पेयर और भी बन रहा है, वो आपका पोजीशन आपकी आ रही है 3 एंड 7. बट ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग. अगर ओवरलैपिंग सिचुएशन होती है तो हम यहाँ पर उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये डबल ओवरलैपिंग है. डबल ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड. ओके, just see how will we create K-map of 4 variables. The number of cell is a 4 variable K-map is 16. Since the number of variable is 4, the following figures shown. You can see this figure, there is a 4 column and 4 row, so it becomes 16. 2 variable in a row representing 2 variable is representing in column. So according to that we will build our K-map of 4 variable. We are going to create a K-map of 4 variable PQRS. There is position has given 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14. So अगर 4 variables K-map we are going to create at the time 4 row and 4 column we will build. 2 variable is for the row and 2 variable for the column. Now we will put the address location. So I had already told you that the last column will be swept second last and last row will be swept in second last row. So what will we do? We put the address 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14. According to that we will be put the address. अब जो हमने यहाँ पे एड्रेस लोकेशन पुट की है, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी हमारे पास वेरिएबल एड्रेस दिया हुआ है उस जगह पे हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन इज 0, 0 पे 1, then 2 पे 1, then 5 पे 1, 7 पे 1, 8 पे 1, 10 पे 1, 13 पे 1, 15 पे 1. अच्छा, 1 why we put? Because it has to represent sigma. सिग्मा इंडिकेट किसको करता है, एसओपी को. एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट. अगर सम ऑफ प्रोडक्ट सिग्मा दिया हुआ है तो हमारे वेरिएबल सम ऑफ प्रोडक्ट होंगे. इन द केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे. और अगर यहाँ पर पाई का साइन होता देन व्हाट विल वी डू, वी विल क्रिएट पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, देन वी विल पुट 0. ओके, तो चलिए अब हम क्या देखते हैं कि हमारे कितने क्वाड, ऑक्टल एंड पेयर बन रहे हैं. तो आप खुद ध्यान से देखिए, देयर इज अ 2 क्वाड बन रहे हैं. 1 क्वाड विद द हेल्प ऑफ मैप रोलिंग एंड 1 क्वाड इन प्लेस 5, 7, 13 एंड 15 पोजीशन से बन रहे हैं. ओके, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड क्रिएट करेंगे. अब नाउ वी विल फाइंड द एड्रेस ऑफ क्वाड. So try to understand in a first place. Just see first place, first cell, just see there is a 1. The location of address is P negation, Q negation, R negation, S negation. तो हम क्या करेंगे, that variable हम उठा लेंगे वहां से. फिर दूसरा हमारा 1 कहाँ मिल रहा है, 10 यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे. तो हम क्या एड्रेस देखेंगे, P negation, Q negation, R और S negation. हम वो उतार लेंगे, प्लस कर देंगे. फिर नेक्स्ट लास्ट वन देखिए, P एंड Q निगेशन, R निगेशन, S निगेशन, हमें एड्रेस मिल रहा है. फिर हम अगर लास्ट वन को देखते हैं तो क्या हो रहा है, यानी कि जो 10 पोजीशन है वहां पर देखिए P Q निगेशन एंड R S निगेशन. ठीक है, हमें 4 एड्रेस मिल गए. अब जब 4 एड्रेस मिले तो अब हमें रिड्यूस करना है.
तो विद द बुलियन लॉ अगर की बात करते हैं, अगर P निगेशन एंड P है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ये आप सोचिए। अगर P और P निगेशन है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? अगर ठीक है, अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, यानी कि वो रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर। तो अगर ये सिचुएशन है तो ऐसे ही जब जहाँ पर, अब आप देखिए पहला क्या है? P निगेशन P एंड P। तो आप P निगेशन P रिड्यूस हो गया, P निगेशन P रिड्यूस हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। अब आप देखिए P निगेशन, मैं यहाँ पे Q निगेशन Q निगेशन Q निगेशन। तो आपको पता है कि जब प्रोटन लॉ क्या कहता है? Q निगेशन एंड Q निगेशन है तो क्या हो जाएगा? Q निगेशन। फिर उसके बाद आपने देखा R निगेशन आपका आ रहा है और R ये रिड्यूस हो गया। R निगेशन एंड R ये रिड्यूस हो गया। तो अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है S निगेशन, सब जगह है। तो आपको क्या वेरिएबल्स यहाँ पे जो दिखा गया है, अगर आप देखते हैं ग्रीन जोन में, आप ग्रीन वाले में क्या मिल रहा है? फ्रॉम द ग्रीन ग्रुप वी गेट द Q निगेशन एंड S निगेशन। हम इसे डायरेक्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं, सीधे सीधे देख लेते हैं। चलिए रेड वाले को हम देखते हैं। रेड वाले के रो को पहले देखते हैं। तो आप रेड वाले के रो में देखिए, दोनों में रो का एड्रेस सेम होगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है? P निगेशन एंड P निगेशन P डायरेक्ट रिड्यूस हो रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है? Q एंड Q। तो आपने रेड वाले के लिए Q निकाल लिया। अब दूसरे में ऊपर अब कॉलम को इंडिकेट कीजिए, R निगेशन एंड R सीधे सीधे रिड्यूस हो रहा है। आपको क्या मिल रहा है? खाली मिल रहा है S और S। आपको पता है S और S बिकम S, ये रूल है, लॉ का रूल है, बुलियन लॉ का। तो अब आपका रेड वाले का एड्रेस क्या हो गया? QS, और ग्रीन वाले का क्या होगा? Q निगेशन S निगेशन। नाउ इट इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ K-मैप। एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है उससे देखते हैं। उससे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप सीधे सीधे आप ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है। यहाँ पर 4 इनपुट का K-मैप बना लिया। फिर हमने एड्रेस पुट कर लिया 0 1 3 2 4 5 7 8। फिर आपका हो गया 12 13 15 14 8 9 11 12। हमारे पास जो एड्रेस लोकेशन के लिए दिया हुआ है, तो आपने क्या किया? M0 पे आपने 1 पुट कर दिया, M2 पे आपने 1 पुट कर दिया है, M8 पे आपने 1 पुट कर दिया, M4 पे आपने 1 इनपुट कर दिया, M9 पे 1 इनपुट कर दिया, M10 पे आपने 1 इनपुट कर दिया है, M12 पे आपने 1 इनपुट कर दिया है, और 13 पे आपने 1 इनपुट कर दिया। जब आपने 1 इनपुट कर दिया तो अब आप क्या देखेंगे कि क्या ऑक्टल बन रहा है, क्वाड बन रहा है, या पेयर बन रहा है। तो आपको देखिए, पहला तो आपका क्वाड बन रहा है, उसकी पोजीशन है 0 4 12 8। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपका एक K-मैप बन रहा है। सीधे सीधे दूसरे K-मैप की अगर बात हम करें तो 0 2 8, अगर दूसरे की बात करते हैं तो 0 2 8 10 से बन रहा है। ठीक है, वो मैप रोलिंग से बन रहा है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरी पोजीशन जो हमारी बन रही है वो हमारी है 8 9 12 13। 8 9 12 13 से एक बन रहा है, ये ओवरलैपिंग से हो रहा है। ठीक है, तो हम ये रूल है कि हम जब भी K-मैप बनाएंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू को फर्स्ट देखेंगे, देन हम क्या करेंगे? पेयर की बात करेंगे। पेयर लास्ट में, हम जब हमें लगता है कि क्वाड नहीं बन रहा है तो हम पेयर बनाएंगे, अदरवाइज हम K-मैप ही बनाते समय हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हुए, अगर ऑक्टा बन रहा है तो ऑक्टा बनाएंगे, क्वाड बन रहा है तो क्वाड बनाएंगे। और जब ना ऑक्टा या क्वाड नहीं बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो हम पेयर बनाएंगे, अदरवाइज हम पेयर को निगलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट करते हैं। ओके।